ये टॉपिक क्या है? टॉपिक आप लोग हाँ तो बोल रहे हैं। टॉपिक देखा है आप में से? मैसेजेस आए हैं किसी को? क्या है टॉपिक का नाम बताइए। हाँ, ओके। तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा क्यों करेंगे? क्यों पहले बहुत समय ऐसे देखते हैं, भक्त लोग आते हैं कुछ समय, आप लोग भी 1 महीने से आ रहे हो, कुछ समय ऐसा लगता होगा कि नहीं इस बार नहीं जाएंगे तो चलेगा, थोड़ा बाहर कुछ करके आते हैं। जैसे देखिए, हमेशा हमारे पास इवनिंग प्रोग्राम में जो लोग संडे को आते होंगे उनको पता होगा 70, 80, इवन 100, 120 स्टूडेंट्स होते हैं। बट आज क्या है? वर्ल्ड कप फिनाले, ये सारी चीज़ें तो इसलिए नहीं आए, राइट? इसलिए नहीं आए। तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है करने का। फिलोसॉफिकल होगा, बट इसको जितने सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे उतना सिंपल तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ताकि आप लोग के भी माइंड में क्लियर हो कि यहाँ पे सिर्फ हम बोलते हैं ना एक अच्छे समय के लिए थोड़ा अच्छा प्रसाद, थोड़ा अच्छे लोगों के साथ डांस वांस करके, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसका महत्व क्या है ये पता चलेगा आज के सेशन में। तो रेफरेंस के लिए हमारा जो श्लोक है वो भगवद गीता के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है। तो मैं उसका श्लोक का उच्चारण करूंगा, अनुवाद, शब्दार्थ और जो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी ने दिया उसको पढ़ूंगा, उसको आप लोग समझिए और उसके ऊपर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज थोड़ा मुझको भी आज 7 बजे से पहले एक और शेड्यूल है उसको पूरा करना, राइट? तो विल स्टार्ट। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्याः परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। एक और बात पढ़ता हूँ। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मृत्युसंसारवर्त्मनि। Word to word meaning. Ashradhana, those who are faithless. Purushaha, such persons. Dharmasya, toward the process of religion. Asya, this. Parantapa, O killer of enemies. Aprapya, without obtaining. Mam, me. Nivartante, come back. Mrityu, of death. Samsara, in material existence. Vartmani, on path. Translation and purport as Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. So translation: those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. अब इसका जो पर्पट है थोड़ा बड़ा है, बट इट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? Purport: the faithless cannot accomplish this process of devotional service. That is the purport of this verse. Faith is created by association with devotees. Unfortunate people, even after hearing all evidence of Vedic literature from great personalities, still have no faith in God. They are hesitant and cannot stay fixed in devotional service of the Lord. Thus, faith is an important, most important factor for progress in Krishna consciousness. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord, Shri Krishna, one can achieve all perfection. That is called real faith. As stated in the Srimad Bhagavatam, 4th canto, 31st chapter, 14th verse, यथा तरोन्मूलनिश्चनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव समाधानम् अच्युतेज. By giving water to the root of a tree, one satisfies its branches, twigs, and leaves, and by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord, one automatically satisfies all the demigods and all other living entities. Therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give up all other engagements and adopt the service of the Supreme Lord, Krishna, the personality of Godhead. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith. Now, the development of that faith is the process of Krishna consciousness. There are three divisions of Krishna consciousness. In the third class are those
who have no faith. Even if they are officially engaged in devotional service, they cannot achieve the highest perfection stage. Most probably, they will slip after some time. They may become engaged, but because they haven't complete conviction and faith, it is very difficult for them to continue in Krishna consciousness. We have practical experience in discharging our missionary activity that some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive. And as soon as they are economically a little well situated, they give up this process and take to their old ways. Again, it is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in the literatures of devotional service and has attained the stage of firm faith is called a first class person in Krishna consciousness. And in the second class are those who are not very advanced in understanding devotional scriptures, but who automatically have firm faith that Krishna Bhakti or service to Krishna is the best course, and so in good faith have taken up. Thus, they are superior to the third class, who have neither perfect knowledge of the scriptures nor good faith, but by association and simplicity are trying to follow. The third class person in Krishna consciousness may fall down, but when one is in the second class, he does not fall down. And for the first class person in Krishna consciousness, there is no chance of falling down. One in the first class will surely make progress and achieve the result at the end. As far as the third class person is in Krishna consciousness is concerned, although he has good faith in and conviction that devotional service to Krishna is very good, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna through the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Sometimes these third class persons have some tendency toward Karma Yoga and Jnana Yoga, and sometimes they are disturbed. But as soon as the infection of Karma Yoga and Jnana Yoga is vanquished, they become second class or first class person in Krishna consciousness. Faith in Krishna is also divided into three stages as described in Srimad Bhagavatam. First class attachment, second class attachment, and third class attachment are also explained in Srimad Bhagavatam in the 11th canto. Those who have no faith, even after hearing about Krishna and the excellence of devotional service, who think that it is simply eulogy, find the path very difficult, even if they are supposedly engaged in devotional service. For them, there is very little hope of gaining perfection. Thus, faith is very important in discharge of devotional service. थोड़ा परपेट लंबा था, हम लोग अभी मंगलाचरण करेंगे, then we'll begin discussing on this particular subject matter. Right? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यानि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो क्या समझ में आया? हम लोग ने इतना बड़ा परफेक्ट रीड किया, राइट? तो हम लोगों ने सिर्फ इसको किस लिए रीड किया? टू नो टाइप्स ऑफ डिवोटीज। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, हो रही हैं चीज़ें, बस ऐसे हो रहा है। हम और बाकी सब लोग ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, दिस इज अ इवेंट व्हिच इज गोइंग ऑन। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं इन द स्टार्ट। सो क्यों नहीं लेते हैं? अब जब हम लोग जैसे भक्ति में आते हैं तो सबसे पहली बात क्या सुनते हैं कि भक्ति में गिरना भी, जितना हम लोग जैसे आसानी से आए हैं उतनी आसानी से गिर भी सकते हैं।
आप लोगों ने बहुत सारे श्लोक सुने होंगे ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कि मतलब मनुष्यों में हजारों जन्म लेने के बाद या मनुष्यों में भी बहुत दुर्लभ होता है एक व्यक्ति जो जिसको भक्ति मिलती है ना? और उसमें भी आने के बाद वो व्यक्ति गिर सकता है। जिस व्यक्ति को भक्ति मिल भी चुकी है वो भी गिर सकता है, ये बताया जाता है हमको बार बार। तो हम उसको सुनते हैं, जैसे कि बचपन से आदत है, स्कूल कॉलेज में टीचर बोल रहे हैं, पता है 1 सेमेस्टर तक एप्लीकेबल रहेगा, 1 साल तक एप्लीकेबल रहेगा, देन अगेन नया सिलेबस चालू होगा, क्या करना उसको याद रखें। बट भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में हर एक चीज रेलेवेंट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना इसको कि ये चीज क्या है, ये प्रोसेस जो है एटर्नल प्रोसेस है, यही हमको करना है लाइफ टाइम बाय लाइफ टाइम, राइट। एंड देन अगेन आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद का आगे चल के पास टाइम आता है। श्रील प्रभुपाद का पास टाइम क्या है कि वो बोलते हैं इन वन ऑफ द बुक्स, हिज होलीनेस सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज राइट्स दैट यू नो वी I've seen my disciples, they are not afraid of Maya. That is one of the things that is mentioned, and the same thing, we hear. क्या करते हिंदी में Hare Krishna. So, Prabhuji is here. Adbhuta Prabhuji. So Prabhuji is telling something, but speaker के वैसे हम सुन नहीं पा रहे, right? Speaker is not good. Otherwise, I would have kind of made it loud. Similarly, आप देखेंगे devotees क्या बोल रहे हैं, कृष्णा क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, that devotee should be fearless. और ये कहाँ बोल रहे हैं भगवान? 16वें अध्याय के श्लोक में बोल रहे हैं कि एक भक्त को निडर होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग माया से ही निडर हो जाते हैं। तो हमको माया से एक्चुअल में डरना चाहिए। वी मस्ट बी फियरफुल ऑफ माया। जो क्वालिटी है, बहुत सारे लोग, जैसे हमने पहले के भी सेशंस में डिस्कस किया है कि हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को सोचते हैं कि अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं ना, स्ट्रेंथ आ गई है। जैसे बाहर के लोग क्या करते हैं, जैसे पावर और पोजीशन मिल जाता है तो वो सोचते हैं ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बाहर देखेंगे आप स्टेट में किसी के पास बड़ा पोजीशन है तो अपने हिसाब से चीजें करता है, क्योंकि पावर है, बोलते हैं ना हम लोग कि इसकी पहचान है, इसका कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है? मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, राइट। सिमिलरली हम लोग भी यही करते हैं भक्ति में आने के बाद, क्योंकि हमारा एक रिलेशनशिप बन जाता है भगवान से। और हम लोग पढ़ते हैं ना कि भगवान भक्त के प्रति बहुत क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक हिसाब से दयालु होते हैं भगवान, अफेक्शन होता है भगवान का, तो उसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिलता है। हम लोग उस स्पेशल अटेंशन को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। हम लोग वो जो हम लोग बोल सकते हैं ना, एक हिसाब से थोड़ा सा जो छूट मिला हुआ है हमको, वो छूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो इसके लिए यहाँ पे क्या मेंशन है कि हमको फियरलेस होना है, लेकिन मटेरियल पर्सपेक्टिव से, मतलब भौतिक जगत में। अगर समझिए मैं भक्ति करने आ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से उन्होंने एजुकेशन लिया, सब कुछ किया, IIT से पढ़े लिखे सब कुछ किया है। आज मॉर्निंग में आप देख रहे थे गगन प्रभु वाज गिविंग क्लास, he has done his IIT, now he's pursuing PhD from IIT, right? He is doing education, but he is kind of dedicated in service. और आगे चल के बहुत सारे ऐसे डिवोटीज आपको पता चलेंगे, बिकॉज आप नए हैं, धीरे धीरे देखेंगे कितने वेल क्वालिफाइड है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इतने डिफिकल्ट CAs आर देयर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी हैं। तो व्यक्ति क्या सोचता है, जब भी किसी भी व्यक्ति को कोई जॉब मिलती है तो उसका सबसे पहला चीज क्या होता है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, राइट। तो मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जो भक्त होता है वो निडर इस तरीके से होता है कि उसको अपने पर्सनल की, मुझको मेरे जो भी पर्सनल नीड्स है, मेरे निजी जो भी जरूरतें हैं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे ध्यान में रखे हैं, क्या होगा। उसके लिए प्राथमिकता क्या होती है, भगवान की भक्ति करना। दैट इज हिज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, उसकी ड्यूटी होती है। तुमको उस तरीके से निडर बनना है। लेकिन हम लोग निडर अलग तरीके से बन जाते हैं। जैसे कोई भक्ति कर रहा है ना, तो सोच रहा होगा कि मैं कितने समय से भक्ति कर रहा हूँ, मुझको 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, चलो अभी तो मतलब मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ ना, अभी मैं जा करके बाहर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो सोचता है 1 हफ्ता छुट्टी लेके आता हूँ, जो जो मेरी पुरानी आदतें थी, कोई भी जैसे भक्ति में आने से पहले नशा करता हो, या फिर जो 4 हमारे नियम हैं उनमें से कोई भी एक नियम का उल्लंघन करता हो ना, वो सोचता है कि मैं चले जाऊं बाहर और फिर ये सारे नियमों पे थोड़ा छूट दे देता हूँ अपने आप को, थोड़ा बहुत अपनी जो पुरानी आदतें हैं उसके साथ संग करता हूँ। तो ऐसा सोचना मतलब सबसे बेकार चीज है। जैसे अभी भक्त आए,
आज सब लोग क्रिकेट मैच देखने आए हैं। क्रिकेट इज व्हाट? इट्स माया। स्पोर्ट्स क्या है? इट्स गैम्बलिंग प्रैक्टिकली। वॉचिंग स्पोर्ट्स, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी टीम जीतेगी, राइट? उसका आउटकम आउटकम आपको फिक्स नहीं है, तो आउटकम का क्या करते हैं हम लोग? बहुत सारे आजकल एप्लीकेशन भी निकल गए हैं जिसपे बेट करते हैं लोग। ये प्लेयर अभी इतना रन स्कोर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। दैट इज बेटिंग, दैट इज गैम्बलिंग। और आधे से ज्यादा लोग क्रिकेट सिर्फ नहीं देख रहे हैं, वो सब इन ऐप से सोच रहे हैं कि हम अपना निजी प्रॉफिट कैसे कमाएं, राइट? आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे आपके, मे बी आप में से कुछ लोगों के फोन में ऐप्स इंस्टॉल्ड होंगे, राइट? नहीं है किसी में? बहुत अच्छे लोग हैं फिर आप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन है, पर्सनल मोटिव्स है। तो वो लोगों ने पर्सनल मोटिव्स को प्रायोरिटी दी आज के दिन। एटलीस्ट एक ही दिन तो होता है, एक दिन छूट चलता है, एक दिन हम कर सकते हैं। बार बार करना अच्छी बात नहीं। तो ये सारी चीजें। और अब व्यक्ति जब इन सारे कार्यों में लगता है तो उसको लगता है हाँ चलो थोड़ा बहुत पाप तो झेल लेंगे, लेकिन जो पापों का फल होता है ना, जिसका रिएक्शन होता है सिंफुल एक्टिविटीज का, उसको लाइटली लेना इज फूलिशनेस, मूर्खता बोली जाती है उसको। कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिए जिस व्यक्ति के मतलब जिस व्यक्ति के पास जितना पाप होता है ना, या जितना उसने एक्यूमुलेट किया रहता है, उसको उतना ही डिफिकल्ट होता है कि वो भक्ति में आगे बढ़े। भक्ति में प्रोग्रेस उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके पास पाप ही इतने हैं। उसके पाप क्या करते हैं? पैरों में बेड़ियां रहती है ना, जैसे आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा क्रिमिनल्स को पैर में बेड़ी लगा के बड़ा बड़ा स्टोन बांधा होता है कि वो मूव ना कर पाए। तो पाप भी उसी प्रकार से, कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जो बेड़ियां और जो भार देख रहे हैं ना, वो हमारे पाप कर्म है, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये हमको समझना। अब आप सोचिए कि पहले 5 किलो का है, फिर आप सोचेंगे थोड़ा जाके और मैं रिलैक्स कर लेता हूँ ना, इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ, 5 किलो में 2 किलो और ऐड हो गया। फिर ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जो वो 5 किलो की चीज 5,000 या 500 किलो हो जाएगी। आप हिल भी नहीं पाएंगे, और वो थोड़ा सा पीछे आएगी तो आपको उसके हिसाब से पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ठहरे 50 किलो के। कहाँ 50 किलो, कहाँ 5,000 किलो? कौन किसको खींच सकता है बताइए? आप अगर उसको थोड़ा सा आगे लाने का प्रयास भी करेंगे, आप लोगों ने कभी देखा होगा, वो थोड़ा सा आगे आएगा, बट वो उसके फोर्स की वजह से और पीछे चला जाएगा। एक कदम आप उसको आगे लाएंगे, वो आपको 4 कदम पीछे लेके जाएगा। और यही होता है भक्तों के साथ में। इन लॉन्गर रन यही सारी चीजों को एक्सपीरियंस करता है। फिर वो बोलता है प्रभु जी क्या पता, नहीं हो रहा मुझसे भक्ति, मेरा यहाँ पे आने का इच्छा नहीं होता, प्रश्न ही नहीं आते, बस ऐसे लग रहा आ रहा हूँ, मुझको लग रहा है बस यहाँ पे मैं ये चीजें कर रहा हूँ, वो चीजें कर रहा हूँ। ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, राइट? और आप देखेंगे दो चीजें होती हैं भक्ति में, या कहीं भी आप देखिए, कोई चीज या तो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है? कोई चीज आगे बढ़ रही है, थोड़ा नीचे आ रही है, फिर आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बार जब कोई चीज नीचे आना चालू होती है ना, तो सिर्फ वो नीचे ही जाती रहती है। एटलीस्ट इन दिस कंटेक्स्ट, नीचे से और नीचे ही जाएगी वो। बहुत डिफिकल्ट होता है उसको वापस ऊपर लेके आना। ये प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल उनके ऊपर कोई महत कृपा ना हो, किसी साधु की कृपा ना हो, कोई व्यक्ति के, जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों ने हमारे जीडीपी का चार्ट देखा होगा। देखा है किसी ने? नहीं, इंडिया का जीडीपी का चार्ट, उस पर टाइम फैक्टर होता है, जीडीपी होता है, फिर उस पर एक लाइन होती है ऐसी थोड़ी हल्की हल्की, दो लाइनें होती है, एक ऐसा जो फ्लक्चुएट हो रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन होता है जो शो करता है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। रेड कलर का होगा तो डेंजर है, ग्रीन कलर का मतलब दैट्स गुड, राइट? तो फ्लक्चुएशन में अगर आप देखेंगे ना, जब तक वो ऊपर जा रहा है तो अच्छा साइन है, और वो एरो हरा है कि हाँ चलो अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। बट अगर वही चीज रेड हो गई तो दैट मीन्स इकोनॉमी इज इन लॉस, नेशन इज इन लॉस, एटलीस्ट ये समझा जाता है। सिमिलरली ये जो कुछ कुछ लक्षण होते हैं जो देख करके हम बता सकते हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में, डिवोटी के, वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। और वो खुद भी एनालिसिस कर सकता है, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि हमें उसको बता करके ये करेंगे। अब इसमें प्रश्न क्या है सबसे बड़ा, कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन हम जो ये नीचे जो जा रहा है एरो, उसको एलिमिनेट कैसे करें, उसको निकाले कैसे हम लोग ना? किसी को ये क्वेश्चन है? सभी को तो ऊपर जाना है ना, सभी को प्रोग्रेस ही करना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोच रहा नहीं मैं थोड़ा ऊपर नीचे करूंगा? कोई है ऐसा? नहीं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, कि हम लोग जो नीचे वाला एरो है उसको निकालना जरूरी क्यों है? सबसे पहली बात ये समझना है, क्योंकि अगर हम लोग नीचे ही देखते रहेंगे ना, अब पता है जीव कैसे आता है? जीव समझ लीजिए गोलोक में है,
तो गोलोक से वो नीचे देख रहा है, गोलोक से उसको नीचे क्या दिखेगा, वैकुंठ दिखेगा, ठीक है। बोले चलो एक काम करो, थोड़ा वैकुंठ जाके आता हूँ। फिर वो वैकुंठ पहुंच जाएगा ना, तो वैकुंठ के बाद उसको दिखेगा थोड़ा स्वर्ग के लोग दिखेंगे। बोले हाँ अभी वापस तो जाना ही है, अब एक बार वैकुंठ में आ गया, मैं तो वैकुंठ देखने आया था, वापस जाना है मुझको गोलोक। लेकिन फिर वो जब नीचे देखता है तो देख रहा अरे यार ये जो इतना ऐश्वर्य है नीचे स्वर्ग में, इसको भी भोगे हुए बहुत समय हो गया, एक काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए जाता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ। फिर वो थोड़ी देर और नीचे जाएगा, फिर ऐसे करते करते नाना योनि में भ्रमण भ्रमण करता रहेगा। नीचे देखने का दिक्कत यही है कि हमारी जो आदतें हैं जो हमको बांध के रखती हैं, हम ऐसा सोचते चलो ना एक बार कर ही लेते हैं, फिर एक बार का दो बार होता है, दो बार का तीन बार होता है, फिर ऐसा होता है यार अब इतनी बार कर ही लिया है तो कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर ही लिया है ना, इसमें गलती क्या है। अगर नहीं किया रहता तो बात अलग थी, टॉलरेट कर रहे थे तब तक, अब तो कर ही लिया, अब तो रिएक्शन मिल ही गया है, फाइन तो भरना ही, अब कितना भी रूल तोड़ो फाइन तो उतना ही भरना है मुझको ना। तो 500 रुपए का फाइन है अगर, तो 5 बार तोड़ने से अच्छा 50 बार तोड़ता हूँ, पैसा भी वसूल हो जाएगा, सही कि नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं, तो अब मेरा पतन होना ही है, तो एक बार तोड़ने से क्या दिक्कत हो गया, 50 बार तोड़ लेता हूँ, पतन तो पतन है, अब क्या करें। तो ये हम लोग सोचते हैं, दिस इज लाइक हमारा माइंड इतना ट्रिकी है, राइट, दैट इज द होल पॉइंट। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, छुटकारा पाने के लिए पता करना पड़ेगा ना प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हो रही है ना, कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, हमको ये समझना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अगर कि ये जो प्रश्न है ना इसके बहुत सारे उत्तर हैं। क्यों बहुत सारे उत्तर हैं, क्योंकि ये इसके कारण बहुत सारे हैं। किसी भी प्रश्न का बहुत सारा उत्तर है क्योंकि लोग प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए उसके उत्तर बहुत सारे होते हैं। इसके कारण बहुत सारे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि हम लोग किससे डील कर रहे हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन में हम बोलते हैं ना साइकोलॉजी बोलते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसके बारे में बात करें, उससे डील करें। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये, उसी के ऊपर आज डिस्कशन है, दैट्स व्हाई लाइक वी हैव मेड नोट्स, ताकि एक भी पॉइंट मिस नहीं करें, क्योंकि इस डिस्कशन में अगर एक पॉइंट मिस हुआ तो पूरा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। अब साइकोलॉजी से पहले हम लोग देखते हैं माइंड इज पार्ट ऑफ बॉडी, राइट, दिस पर्टिकुलर बॉडी। तो अगर आप बॉडी को ही देखेंगे, बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी है कि जो डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स को भी क्या करना पड़ता है, आपको कोई बीमारी होगी ना अगर, तो आपको जनरल फिजिशियंस के बाद में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी बीमारी तो स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, दैट ही इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड ओनली, ठीक है। स्पेशलिस्ट मतलब हम लोग यूजुअली क्या समझते हैं कि इसको ज्यादा पता है, लेकिन ज्यादा किस चीज के बारे में पता है, एक ही फील्ड के बारे में पता है। बाकी अगर समझ लीजिए आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में ईएनटी वाले डॉक्टर का, ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होता है ईयर नोज थ्रोट वाला, ईएनटी स्पेशलिस्ट का नॉलेज नहीं होगा, या वाइस वर्सा ईएनटी वाले के पास डर्मेटोलॉजिस्ट का नॉलेज नहीं होगा। जनरल फिजिशियन के पास थोड़ा बहुत मिल जाएगा, जो कि आप रेफर कर देगा वो आपको कि आप ईएनटी को दिखाइए या इनको दिखाइए। उनके पास भी, स्पेशलिस्ट लोग के पास भी कभी कभार ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बीमारी होती है ना उसको डायग्नोस नहीं कर पाते वो। इवन डायग्नोसिस का बात आप छोड़ दीजिए, आज तक बुक के अंदर ना, आप में से कोई मेडिकल फील्ड से बिलोंग करेगा, कोल्ड का कॉज नहीं पता किसी को, कॉज, दैट इज द होल पॉइंट इन द बुक इफ यू गो ऑन लुकिंग, राइट। ये सारी चीजें हमको पता ही नहीं है। तो आप देखेंगे एक बीमारी है, स्किन डिकलरेशन इशू होता है, उसमें क्या होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को उनके शरीर पे सफेद सफेद कलर के धब्बे होते हैं, विटेलिगो कहा जाता है उसको ना। तो हमको बोला जाता है कोई, मतलब जैसे बाहर के दुनिया में थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि यदि कोई मछली खाने के बाद दूध पी लेता तो उसको ऐसा डिकलरेशन का इशू हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट डिकलरेशन है, इसका कॉज अभी तक पता नहीं है मेडिकल फील्ड में किसी को कि ये हो किस लिए रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। लेकिन ये बीमारी लंबे समय से चलती आ रही है ना। तो ये सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग कि कैसे बॉडी के बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं है, राइट। तो अब ह्यूमन माइंड के बारे में क्या ही बोलेंगे, ह्यूमन माइंड को जानना तो और डिफिकल्ट है। अब देखिए अभी जो बाहर के वर्ल्ड में मंडेन साइकोलॉजिस्ट हैं, तो साइकोलॉजी के नाम पे सिर्फ उनके पास क्या है, मेंटल स्पेकुलेशन है, जो उनके पास मानसिक तर्क वितर्क बोल सकते हैं, उनके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मंडेन साइकोलॉजिस्ट। वो सिर्फ मेंटल कॉन्कॉक्ट करते हैं, मेंटली स्पेकुलेट करते हैं, कुछ क्लियर नॉलेज नहीं है,
इसके लिए उनका एक पार्ट के 10-10 शाखा बना के रखा है उन्होंने। आप जाएंगे, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, डिप्रेस्ड है, रिगार्डिंग हिज जो शरीर में उसने जन्म लिया है। हम लोग बोलते हैं ना टुडे मेजर कंसर्न आप देखेंगे, बहुत सारी कम्युनिटीज बढ़ रही हैं, एलजीबीटीक्यू, ये सारी चीजें, क्योंकि लोग क्या है, लोग कंफ्यूज्ड हैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के, कि कोई बोलता है मैं मनुष्य योनि में तो आ गया हूँ, लेकिन मेरा अफेक्ट कुत्तों के साथ ज्यादा है। कोई बोलेगा मैंने, बोलते हैं ना, एक मेल बॉडी में जन्म लिया, या फिर नर मादा वाला सिस्टम, मैं नर शरीर में जन्म ले लिया, बट मेरे को ऐसा लगता है मैं मादा हूँ अंदर से, या कोई ऐसा बोलता है। तो व्हाट दे मेक यू बिलीव, जब आप उनके साथ शेयर करेंगे ना ये सारी चीजें, सो इफ यू शेयर, इट्स 100%, या फिर हम बोल सकते हैं ना बहुत हाई परसेंटेज है जहां पे दे विल कन्विंस यू दैट यू नीड टू अंडरगो सेक्स चेंज सर्जरी, because they'll say, right now what is your conception, you have been heterosexual for so long. Heterosexual means a male's attraction towards, he is satisfied in his own body, male में खुश है ना, बट वो बोल रहे क्योंकि आप लंबे समय से ऐसे रह रहे हैं ना, इसके लिए आपको चेंज की आवश्यकता है, समझ रहे हैं आप? तो आपको चेंज लाना चाहिए अपने जीवन में। सर्जरी से फिर बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर्जरी करवा लीजिए। सो दैट्स व्हाई वो बंदा ऐसे हो जाए। और उससे भी चलिए, ये बहुत लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे, मैरिज काउंसलर्स होते हैं, मैरिज काउंसलर नाम के कुछ लोग होते हैं, उनके पास व्यक्ति जाता है ताकि वो क्या कर पाए, पैचअप कर पाए अपना रिलेशनशिप बचा पाए, जो अपना संबंध, पति पत्नी अपना संबंध बचा पाए। लेकिन वहां पे जाने के बाद उन लोग बोलते हैं आपको डिवोर्स की जरूरत है, आपका जो प्रॉब्लम है वो डिवोर्स से सॉल्व हो सकता है, आप दोनों को एक दूसरे को समय देना चाहिए, थोड़ा डिवोर्स देके देखिए। तो दे एंड अप गेटिंग डिवोर्स्ड। उनको क्या करना था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था, प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो दिस इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू आज के समय वाले। अब देखिए, आप बहुत सारे, इसके लिए क्या बोला जाता है कि अगर मैराथन आ रहा है, हम लोग किसी भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट को देखें, सबसे पहली बात क्या करना, उसको श्रीला प्रभुपाद की बुक दीजिए आप ना, उसको ग्रंथ दीजिए, ताकि वो ग्रंथ पढ़े, थोड़ा उसको समझ आए कि एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर आपके पास ग्रंथ नहीं है देने के लिए, तो चुपचाप भाग जाइए वहां से, क्योंकि लोग, उनकी आदत ही है कि वो किसी भी व्यक्ति को देखते ही क्या करते हैं, एनालिसिस चालू कर देते हैं उन लोग अपना। हाँ, आपको ये दिक्कत है, मुझे लग रहा है आपके चेहरे से मुझको ये लग रहा है, तो आप भी सोचेंगे यार इतना सारा तो दिक्कत है हम लोगों को, उसमें से कोई ना कोई एक तो बता ही सकता है। बोलेगा कि आपको टेंशन, मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत टेंशन है। अरे किसके जीवन में टेंशन नहीं है? कोई है ऐसा व्यक्ति आप में से जो बोलेगा प्रभु जी मेरे जीवन में तो बहुत अच्छा हूँ? मैं बोल सकता हूँ मेरे जीवन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोग भक्ति कर रहे हैं फुल टाइम। तो वो देख करके ऐसा आपको क्या करना है, तोड़ना चालू कर देगा धीरे धीरे। तो इसके लिए क्या करना है, वहां से भाग जाना है, क्योंकि आपकी दिक्कतें और बड़ी होंगी, और जितनी बड़ी आपकी दिक्कतें होंगी उतना बड़ा उसका बिजनेस होगा, ये याद रखना है, ठीक है? तो ये हम लोगों को देखना है सबसे महत्वपूर्ण। तो अब ऐसा सोचेंगे कि मन ऐसा क्यों है फिर ना, इतनी दिक्कतें ला रहा है। अभी हम लोग साइकोलॉजिस्ट का पूरा डिस्कस किया, बिकॉज माइंड का प्रॉब्लम है ना ये सारी चीजें। तो मन ऐसा क्यों है, हमारा प्रश्न ये आता है। तो चैतन्य चरितामृत में दिया है, होया माया दा दास करे नाना अभिलाष। ये जो मन है ना, ये अनेक प्रकार की क्या करता है, इच्छाएं प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि वो माया का दास बन चुका है, माया के अंदर है वो, इसके लिए वो क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। अब ये जो इच्छाएं है ना, ये हमको भौतिक संसार में बांध के रखती हैं। भक्ति का प्रोसेस क्या है, भौतिक जगत से फ्रीडम, राइट? लेकिन जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, अगर आप देखेंगे, ये क्या है, बंधन है। तो एक जगह पे आप, ये तो यही बात होगी ना कि आप कहीं आग जला रहे हो, फिर उस पर पानी डाल रहे हो, बाद में बोल रहे हो आग जल ही नहीं रही ना, ऐसा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो क्यों नहीं जल रही, क्या रीजन है? तो ये यही बताया जा रहा है। अब सबसे पहली बात क्या दी है यहाँ पे, कि ये सारी डिजायर्स तो हमको बांध रही है, और जितना हम इन इच्छाओं पे चिंतन करेंगे ना, जितना मेडिटेट करेंगे हम इच्छाओं पे, चलो मुझको क्या करना है, फिल्म देखना है, क्रिकेट देखना है, क्या पता मैच का स्कोर क्या हुआ होगा, अभी बहुत सारे लोग के दिमाग में चल रहा होगा, तो 7 बजे तक सेशन खत्म हो जाए फिर जाके देखेंगे अगर चल रहा होगा तो फिनाले ना। ये सारी चीजें, कुछ ना कुछ चल रहा हो, कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम के बाद में आपका कुछ और प्लान होगा जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगे, वो चीज दिमाग में चल रहा है। तो जितना व्यक्ति डिजायरफुल होता है अपने दूसरे प्लान्स में,
भक्ति के अलावा, कृष्ण कॉन्शियसनेस के अलावा क्या होता है, उसका जो इंथुजियाज्म है ना, जो उत्साह होता है ना, उतना कम होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये मतलब दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डिकोडिंग। हम भक्त को देख करके पढ़ते हैं ना, हम लोग होते हैं ना इंसान पढ़ना, तो ये एक्चुअल में सेशन वैसे टाइप का है कि आप लोग अपने आप को इससे एनालिसिस कीजिए कि मेरा उत्साह क्यों कम है, क्योंकि मैं किसी और चीज पे चिंतन कर, मेरा चिंतन वस्तु कृष्ण को छोड़ करके, भक्तों की सेवा छोड़ करके, भगवान की सेवा छोड़ करके कुछ और है, मेरा प्राइमरी गोल कुछ और है, दैट इज द होल पॉइंट, राइट। और इसका भी हर एक चीज का देखिए सिम्टम होता है ना, तो जो व्यक्ति इन सारी चीजों पे चिंतन करता है ना, आप उसका चेहरा देखेंगे ना, तो बोला था ब्लैक फेस, ब्लैक फेस मतलब काला रंग नहीं, डल हो जाता है। जैसे कोई गोरा है लेकिन आप देखेंगे उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ है ना, अब बोलते हैं अंग्रेजी में कहावत है, ही इज इन द ब्लूज ना, थोड़ा इसका मूड खराब, मतलब अच्छे मूड में नहीं है ये, क्या पता क्या हो गया इसको। लेकिन आप किसी डिवोटी को देखेंगे ना, ही इज ब्राइट फेस, उसका चेहरा ना हमेशा चमकता हुआ दिखेगा, ब्राइट फेस दिखेगा आपको, येलो दिखेगा थोड़ा हल्का फुल्का, तो लगे यार इन लोग का चेहरा चमकता है, हमारा चेहरा क्यों नहीं चमकता, तो दैट इज इंडिकेशन, दैट इज इंडिकेशन दैट ही इज एक्चुअली मेडिटेटिंग ऑन कृष्ण। आप उसको देख करके उसके उत्साह से बता सकते हैं हाउ मच ही इज इंथुजियास्टिक टू सर, ही इज नॉट टायर्ड ऐसे बैठ के नहीं, अरे हाँ वो बहुत उत्साह मतलब उसमें रहता है, ऐसा फिर कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा, उसके अंदर उत्साह होगा, या कोई भी एक्टिविटी करेगा ही विल बी एक्टिव इन दैट एक्टिविटी के अंदर एक्टिव रहेगा, क्योंकि उसके अंदर उत्साह है उतना। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सबसे मेन बात क्या है, ये तो हमने समझ लिया माइंड क्यों है ऐसा। तो ऊपर जाने के लिए क्या आवश्यकता है कि हम लोग को यदि ऊपर जाना है भगवान के पास, तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या, प्रैक्टिकल गाइडेंस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो ये भी चैतन्य चरितामृत में से, हम लोग चैतन्य चरितामृत से ज्यादातर कोट करेंगे, राइट। तो उसके अंदर बताया जाता है कि जो व्यक्ति होता है, भक्त होता है, उसको भक्ति लता का बीज मिलता है। आप लोगों में से किसी ने गार्डनिंग किया है, पौधे कभी लगाए हैं घर पे, तो पहले बीज डालते हैं, राइट, बीज डालते हैं, वैसे भक्ति का जो लता होता है बीज होता है पहले। तो बीज क्या होता है, बीज लेने से पहले आपको क्या रहना चाहिए कि इससे पेड़ उगेगा, जो मुझको चाहिए, अगर मुझको ऐसा पेड़ चाहिए तो ये बीज से काम होगा मेरा, तो इसे क्या बोला था, श्रद्धा, फेथ। हर एक चीज में फेथ होता है पहले। आप लोग बाहर भी पढ़ना जब प्रारंभ किए होंगे, या आपने अपने जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, राइट, तो पहले आपको क्या था, फेथ था कि ये चीज काम करेगी, ऐसा था। किसी को अश्योर करने का जरूरत नहीं था आपको कि नहीं देखो काम करेगा, आप टेंशन, आप खुद अपने आप को बोल रहे ये चीज काम करेगी इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो फेथ होना चाहिए। तो शुरुआत का जो फेथ होता है ना, आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज है फेथ। भक्ति से आप अंदर आए ना, आप लोग जब आने के लिए कोई भी फर्स्ट टाइम आया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मुझको इतना विश्वास है कि मेरे समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा, या सुख के लिए कोई आया होगा, या कोई कोई अलग अलग मोटिव से आया होगा, लेकिन हमारे भक्त बहुत एक्टिव है, पकड़ लिए होंगे आपको, हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ा जप कीजिए, नंबर दीजिए आपका, ठीक है, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, थोड़ा फीस्ट प्रसादम होता है, ये ऐसे करते 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 धीरे धीरे आपको माफिया वर्ल्ड का पार्ट बना दिया है। आप लोग बाहर की सारी चीजें छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, राइट। अब आप लोग सोच रहे हैं बाहर जाना है, लेकिन बाहर जा ही नहीं पाते, क्या करें, बार बार फोन कर करके बुला लेते हैं लोग, और कोई गलत चीज, गलत रीजन भी नहीं दे रहे हैं कि इसको छोड़ के चले आए प्रभु जी, आप लोग बहुत गलत बताते हैं, इतना अच्छी चीजें बता रहे हैं ना, तो हम लोग ये सारी चीजें सोचते हैं, यहाँ चलो बन गए। तो इसीलिए फेथ होना चाहिए, सबसे पहले फेथ होता है। अब उसके बाद देखेंगे, अब ये फेथ जो होता है ना, इसी के कारण जो भक्ति होती है ना, भक्ति का बीज जो होता है, बीज को सिंचन करना होता है, तो वो क्या बनता है, एक लता में बनता है। लता मतलब क्रीपर होता है, आप लोगों में से जितने लोगों ने देखा कमजोर होता है वो। आप लोग पंपकिन का झाड़ देखे, पंपकिन एक हिसाब से लता है, उसका वो जमीन पे उगता है, ऐसे गोल गोल आप देखेंगे, सहारा लेकर के नीचे उगता है। सब्जी इसलिए बता रहा हूँ, लोग खाते होंगे बाकी और सारी चीजें क्रीपर के लिए, लेकिन ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो अब इसको बढ़ने के लिए आपको पता है एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे वो किसी भी चीज को पकड़ करके बढ़ता है क्रीपर, हवा में नहीं बढ़ेगा वो, अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला ना, तो जैसा पंपकिन है, पंपकिन नीचे ही रहता है, उसको सपोर्ट मिलेगा धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं वो चला जाता है, जिस प्रकार से उसको सपोर्ट मिले। और इसको बढ़ाने के लिए क्या चाहिए,
किसी भी पौधे को बढ़ाने के लिए सिंचन करना आवश्यक है ना, उसको पानी देना पड़ेगा। तो माली जो होता है, माली मतलब भक्त की बात हो रही है यहाँ पे, गार्डनर, भक्त। भक्त क्या करता है, इसको सिंचन करता है। सिंचन किससे करता है वो भी बताया जाएगा। कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनावृत्ति से सिंचन करता है। और उसके अंग क्या क्या है ये बताया जा रहा है। तबे आय तदि उपारी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण, कि देन इट रीचेस, बढ़ता है ना जब धीरे धीरे उसका सिंचन होता है। सिंचन किससे होता है, हियरिंग एंड चैंटिंग, जो हम लोग श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं भगवान के नामों का, भगवान के गुण का, भगवान की लीलाओं का। इसका जब सिंचन करते हो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब बढ़ने के बाद कुछ उसका लिमिट होता है ना किसी भी चीज का। जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ आप कब बोलेंगे बढ़ गया, जब वो फल देना प्रारंभ कर देगा, या उसका एक ऊंचाई होता है। हर एक पेड़ का एक ऊंचाई होता है, आपको पता है ये पेड़ इतना ही बढ़ने वाला है। तो ये जो भक्ति लता बीज है ना, ये कहाँ तक बढ़ती है आप लोगों को बताएं अगर, तो वो कृष्ण के चरण तक बढ़ती है, भगवान के चरण तक। और एक बार जब वो चरण को प्राप्त कर लेते तो उसको क्या मिल जाता है, प्रेम धन की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण प्रेम मिल जाता है। दैट इज लाइक वो उसने अपना जो भी रिक्वायर्ड चीज था वो पूरा कर लिया। लेकिन फिर भी उसको सिंचन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि एक बार भगवान के पास पहुंच गए तो फिर भगवान के लीला का स्मरण नहीं करेंगे, गुणगान नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि ये मतलब हम लोग परफेक्ट हो गए, अब इसको पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं भौतिक जगत में, स्कूल्स कॉलेजेस में, चलो हाँ 7th स्टैंडर्ड की पढ़ाई हो गई, 7th स्टैंडर्ड के बुक की आवश्यकता नहीं है, बुक्स को हटा दो साइड में, ये बुक्स रिक्वायर्ड नहीं है। या फिर कोई जॉब कर रहा है कहीं पे, तो जॉब करते हैं तो आपको आईडी कार्ड मिलता है या आपका प्रोफाइल होता है कोई ना, लॉगिन आईडी होता है, फिंगरप्रिंट होता है। तो एक बार जॉब से रिजाइन कर दिया तो वो सबका कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन जब तक आप जॉब पे रहते हैं, हाँ ये आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पंच इन कैसे करूंगा, टाइम आउट कैसे करूंगा, राइट। या फिर आईडी कार्ड सेम स्कूल कॉलेजेस में, आप लोगों को जब तक कॉलेज जाना है पता है वॉचमैन अंदर जाने नहीं देगा, सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने नहीं देगा अगर हम लोग उसको आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे तो। तब इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, क्योंकि लिए भक्ति का जो परफेक्शन है वो यही है कि जो भक्त है वो सदैव हरिनाम कीर्तन और श्रवण में लगा रहता है। ये उसका परफेक्शन है, चरम सीमा हम लोग बोलते हैं ना, टॉप मोस्ट परफेक्शन यही है कि वो कंटिन्यूअस सतत लगा रहता है, वो 24/7 लगा रहेगा उसमें। उसका लक्षण होता है कि उसकी रुचि इस प्रकार से बढ़ जाती है उसकी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे, अब ये तो बात हो गई बढ़ गया, लेकिन कोई कोई चीज होती है ना इससे आपको प्लांट को बचाना भी होता है, आपके क्रीपर को बचाना होता है कुछ कुछ चीजों से, तो वो भी यहाँ मेंशन किया है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मथा उपादे व छिंद तारा सुखी गया पाते, कि अब जो ये मैड एलिफेंट होता है ना, पागल हाथी को देखा है कभी आप लोगों ने टीवी में? ओरिजिनली तो किसी ने नहीं देखा होगा। बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, वो तबाही बहुत मचाता है। गुस्से में किसी व्यक्ति को ही देख लो, बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, टीवियां फोड़ने लगते हैं, टेबल गिराने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं, एक दूसरे का सर, गुस्से में लोग बाहर मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का। ये तो छोटा सा मनुष्य है हाथी से कंपैरेटिव। अब सोचिए कोई पागल हाथी आ गया तो आपके गार्डन में लता कितना कमजोर होता है, बच्चा उसको खींच करके निकाल सकता है। अब सोचिए वो हाथी अगर आ गया, हाथी के लिए कितना आसान होगा वो लता को निकालना, वो सिर्फ सूंड से मारे तो वो निकल जाए। तो हमारा जो भक्ति का लता है ना वो बहुत कमजोर है, किसके सामने, इस हाथी मता रूपी अपराध के सामने भी। हाथी मता रूपी जो अपराध है ये क्या है, या हाथी मता है जो, वो क्या है, वैष्णव अपराध, किसी भी भक्त के प्रति अपराध करना। और ये क्या करेगा पता है आपको, तुरंत पौधे को तोड़ते ही पौधा मरता नहीं है, कुछ समय तक रहता है, फिर धीरे धीरे सूखना प्रारंभ होता है और खत्म हो जाता है फिर। तो आपको लगेगा अभी तो मेरा भक्ति अच्छा जा रहा है, क्या दिक्कत है, चल रहा है। बट आप देखेंगे अगर तो जो हमारा भक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, फिर बाद में इंटरेस्ट ही चला जाएगा, राइट, इंटरेस्ट चला जाएगा उसका। तो इसी को बोला जाता है कि ये चीज सूख जाएगी, बाद में ड्राई लगने लगी। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं तो जब मजा नहीं आता, पहले स्टार्टिंग में आता था तो आता था, अभी ड्राई ड्राई लग रहा है। क्या हमारे साथ थे एक डिवोटी, प्रैक्टिस करते थे, मतलब प्रैक्टिस इन द सेंस हमने जब ट्रेनिंग की थी, ट्रेनिंग पीरियड में एक डिवोटी थे, तो उनका रीजन यही था, बोल रहे थे कि भक्ति में तो आ गए थे लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि बोल रहे थे ड्राई ड्राई लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने वैष्णव अपराध किया था या कुछ किया था, बट वो बोलते हैं ड्राइनेस लग रही है अपने को, भक्ति में उतना रस नहीं मिल रहा। ये रीजन होता है बाद में भक्तों का।
तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको बहुत सावधान रहना है, उस माली को बहुत सावधान रहना है कि वो उस लता को बचा के रखे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उसको बचाने के लिए उसको कुछ तो प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग बड़ी बड़ी दीवारें लगाते हैं, आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा हो, सुना है ना, इट्स वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। उसको बनाया गया था प्रोटेक्शन के लिए। वैसे उनको नहीं पता था कि ये 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आने वाला है, उन्होंने उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया, राइट। तो उसी प्रकार से हमको भी फेंस खड़ा करना पड़ेगा। अब ये जो फेंस होता है, फेंस आवश्यक नहीं है कि एक ही मटेरियल का हो ना। जितना आपने सुना होगा मटेरियल्स बहुत सारे हैं, अलॉय स्टील होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एल्यूमिनियम कमजोर होता है, कॉपर और कमजोर होता है। तो उसी प्रकार से अलॉय स्टील है, तो हमारा जो फेंस होता है वो अलग अलग मटेरियल का बनता है। अब आप देखेंगे कि ये मटेरियल क्या क्या है, राइट। ये भी बताते हैं भगवान कि इसके अंदर, इसी श्लोक के अंदर वो बता रहे हैं किस प्रकार से हमको जो हमारा फेथ है उसको स्ट्रॉन्ग रखना। फेथ को बढ़ाने के लिए हमको अलग अलग भक्ति की क्रिया करनी पड़ेगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ना। अलग अलग चीजें, ये कंबाइंड चीज करनी पड़ेगी, तो जाके हम लोग का जो फेंसिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि जिनको ये विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा ना, तो भी वो लंबे समय तक चल सकते हैं। जैसे कि कुछ 10 वर्षों पूर्व की बात है, एक तो एक एथिस्ट लोग जो होते हैं ना, जिन लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, तो वो लोग का अटैक बहुत गहरा था। तो क्रिस्टोफर हैकिंस हो गए, ये सारे, मतलब ये वेस्ट की बात है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात है। तो इसमें क्या पता चला था, पता है आपको, कि जो वहां पे फादर्स होते हैं ना, फादर्स होते हैं, जब उनको पूछा गया कि आप क्यों कर रहे हैं, तो उनकी कोई रुचि नहीं थी, बस वो कर रहे हैं लंबे समय से इसलिए करे जा रहे हैं। उनके चर्चेस में, हाँ, वो लोग बैप्टाइज करते हैं, बच्चों को शुद्ध करते हैं। आपने देखा होगा बैप्टिज्म करके कोई चीज होती है, बच्चा पैदा होता है तो उसको होली वाटर से टच करते हैं, कुछ रिसाइट करते हैं उन लोग। फिर जो दफनाना होता है लोगों को, उनका सेरेमनी होता है ना, दफनाते हैं लोगों को। ऐसी बहुत सारी चीजें जो वो सिर्फ करते जा रहे हैं, मासेस होल्ड करना ही, वो उसके पीछे का उनको रीजन नहीं पता क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, पसंद नहीं है उनको, लेकिन बस बिल भरा भरा जा रहा है ना, लाइफ चल रही है, कर रहे हैं। और अब 50 वर्ष के हो गए, क्या करें। उसमें से किसी की इच्छा है भाई मुझको रॉक स्टार बनना है, लेकिन हम रॉक स्टार बन नहीं सकते। किसी की अलग अलग प्रकार की इच्छा है, लेकिन वो इच्छा नहीं पूरी कर सकते आप, चाह करके भी नहीं कर सकते वो। क्यों? क्योंकि अब समय बचा नहीं हमारे पास, समय ही नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो भक्ति में है तो, लेकिन कुछ उत्साह नहीं है, कुछ नहीं है, बस लग कर रहे हैं चीजें, चीजें कर रहे हैं, चलो चल रही है ना, कट रहा है जीवन, अच्छा है, अब और क्या ही करेंगे, सब कुछ तो छोड़ दिया है बाहर, क्या करना है उसमें। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जब तक हम लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा जो फेथ है वो स्ट्रांग नहीं होगा। और एनओआई का सबसे पहला चीज यही होता है, उत्साह निश्चय। उत्साह सबसे प्राइमरी चीज है, बिना उत्साह के मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। और उत्साह कैसे बढ़ाना है हमको, उत्साह बढ़ाएंगे हम लोग, समझिए मेरे पास नहीं है कोई चीज, तो जिसके पास है मैं उसके पास जाऊंगा, राइट। अभी समझिए मेरे पास भी नहीं है और मेरे साथ जो व्यक्ति है उसके पास भी नहीं है, तो हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अरे मुझको तो क्या पता लेक्चर सही नहीं लग रहा, थोड़ा सर के ऊपर से आ रहा है, अरे यार मेरे भी सर से ऊपर से आ रहा है, क्या करें फिर, नहीं बैठते, बाहर चले जाते हैं बाहर, और चीजें, वो भी गया ये भी गया, दोनों गया। तो हमको किसके पास जाना पड़ेगा, जिस व्यक्ति का उत्साह, जिसको समझ में आ रही है चीजें। अभी जैसे मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे भक्त का संग करना पड़ेगा जिसका रीडिंग बहुत अच्छा है ना। लोग यही बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा, आप उसके साथ रहो कम से कम, तो उसको देख करके हमको कुछ ना कुछ पता चलेगा, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। एंड देन व्हाट वील डू, विल काइंड ऑफ ट्राई एम्यूलेटिंग हिम, उसको सोखना चालू कर देंगे हम लोग, और नेचुरली फिर वो हमारे अंदर आ जाएगी चीज। और कुछ गलत नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, कर सकते हैं भक्ति में, इसके लिए बोला गया है। भगवान बोलते हैं संगात संजायते काम, कि संग में ही सारी चीजें होंगी, जैसा आपका संग होगा ना उसी प्रकार से चीज होंगी आपके साथ, ये बताया गया, राइट। और कोई व्यक्ति ऐसा सोचे नहीं मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ जो कर रहा हूँ, तो इंटेलेक्चुअली समझना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। बचपन में सिंपल मैथमेटिक्स था, 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 3, सबको पता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं 12,330 डिवाइडेड बाय 26, बिना फोन निकाले, कर पाएंगे?
समय लगेगा ना, समय लगेगा, कर लेंगे, बहुत समय लगेगा। और अगर मैं फ्रैक्शन में दे दूं तो पॉसिबल भी नहीं होगा इंटेलेक्ट से। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस कुछ सेट नंबर ऑफ चीजों को ट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, बट अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स थियरी दे दो इंटेलेक्चुअली नहीं समझ पाएंगे वो इस चीज को। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग आते हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है प्रीचिंग में, वो थोड़ा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, नाना प्रकार के बाहर की चीजें पढ़ूंगा, ये करूंगा। मेरे को थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मैं गिटार लेके आऊं क्या? तो गिटार क्यों बजाना है भाई तुमको? हमारे पास मृदंग है, करताल है, बजाओ, हारमोनियम बजाओ ना। तो वो सोचता नहीं मैं ये सीखता हूँ, गिटार सीखता हूँ, गिटार थोड़ा अच्छा लगता है, दैट इज नॉट रिकमेंडेड ना। उसी प्रकार से भक्ति में कोई सोचे अगर मैं यही सेम प्रिंसिपल क्वांटम फिजिक्स से समझाऊं आपको, बैकग्राउंड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पता ही नहीं हमको, दैट इज द मेन थिंग। हमको ये सारी चीजें पता नहीं है, और लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे क्या पता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमको क्या करना है, जितना सिंपल हो सके उसको उतना सिंपल रखना है, और इंटेलेक्चुअल नहीं बनना है ज्यादा, सिंपल रहना है। जैसे श्रील प्रभुपाद का एक पास टाइम बता के मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ पे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को एक कन्वर्सेशन था श्रील प्रभुपाद का। आप लोगों ने मेंसा का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो गूगल पे सर्च करिएगा। ये एक कम्युनिटी है हाईली इंटेलिजेंट लोगों का यूएस में। तो वो लोग श्रील प्रभुपाद को ना एकदम क्वेश्चंस फायर किए जा रहे थे। इन लोग मतलब टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका डायरेक्टर या उनका जो मेन हेड था कोई, वो प्रभुपाद से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। एंड प्रभुपाद इज डिफीटिंग देम ऑल, हर एक जन को डिफीट कर रहे हैं प्रभुपाद, लेफ्ट राइट गिरा रहे हैं। दे वर इम्प्रेस्ड एट लास्ट, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो उन्होंने प्रभुपाद के सामने प्रपोजल रखा, सर प्रभुपाद यू कैन टेक अ टेस्ट एंड वील गिव यू द टाइटल, will declare you a member of this committee. Prabhupada flatly declined. There's no need. शॉक में आ गए, because जब क्वेश्चन किया गया, then Prabhupada said what that Krishna consciousness is about intelligence. कोई बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट आपको दिखेंगे, लेकिन हर कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो सकता, नॉट इम्पोर्टेंट। ऊपर से आप देखेंगे हाईली इंटेलिजेंट लोग एथिस्टिक हो जाते हैं, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, हम अपने इंटेलेक्ट से मान रहे हैं। इंटेलेक्ट क्या है, व्हाट इज इंटेलेक्ट? और आप देखेंगे कोई बोल सकता है कि श्रील प्रभुपाद का एक्चुअल में साइंस में कोई बैकग्राउंड नहीं था, नेवर, लिटिल बिट बैकग्राउंड बिकॉज़ ही वाज वर्किंग इन लैबोरेटरी, केमिस्ट थे, थोड़ा बहुत उनको जो काम लायक था वो पता था। श्रील प्रभुपाद हिमसेल्फ सेज दैट आई डोंट हैव बैकग्राउंड इन साइंस, बट इफ यू लुक एट डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, big scientists were defeating, Prabhupada was defeating scientists. So definitely Prabhupada was most intelligent person. So most intelligent person. But still, for our understanding, what he did, he said, material intelligence is not required. That's why हम बोलते हैं ना, भक्ति कोई भी कर सकता है, कहीं से भी आकर के भक्ति कर सकते हैं। भक्ति में कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप, जैसे कॉलेजेस में होता है, हम लोग कभी किसी को नहीं बोलते आपकी मार्कशीट दिखाइए, 80% आएंगे तभी क्लास में दाने देंगे। विदाउट 80%, बिलो 70% वाले लोगों को तो खड़ा भी नहीं करते, जाओ निकल जाओ। बाहर कॉलेज में ये होता है, यहाँ नहीं करते, बिकॉज मटेरियल इंटेलिजेंस इज नॉट, होना चाहिए, है, इट्स वेल एंड गुड, बट नहीं है और आप सिंसियर हैं, सिंसियरिटी लौल्यम अपि ही एकम मूल्यम, सेड इन द शास्त्र। सो आई वुड लाइक टू एंड, ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट एक्सीड कर चुके हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस। नहीं, थोड़ा ज्यादा हाई फिलॉसफी वाला क्लास हो गया, समझ ही नहीं आया। So I'll end. Sorry if there is मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हूँ, I'll ask for forgiveness. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।